Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And let's begin with our lesson which name is Substances in Daily Use. This chapter is of 6th standard and its subject is the science. Substances in daily use means पदार्थ दैनिक उपयोग में. So this chapter consists of the 3 parts and already we have completed our first and second one part. And now we will begin with our third one part also. So the third one part consists of the 2 points, namely the 8th point is synthetic fibers or threads and 9th point name is advantages and shortcomings of the synthetic fibers. And now we will begin with our first point which name is synthetic fibers or threads यानी कृत्रिम फाइबर और धागे. From the time it was the first thought that the artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of the increasing population and much research and progress has taken place in this field. तो टाइम में से जो सबसे पहला विचार था कि जो कृत्रिम धागे हैं उसका निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण जो हमारे कपड़े की ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है और इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जो अनुसंधान और प्रगति ने जगह ले ली थी. And innumerable kinds of the synthetic threads are now available. Nylon, dacron, terylene, terene and the rayon and also the polyester are the different types of the synthetic threads. तो nylon, dacron, terylene, terene, polyester और rayon जो होते हैं ये सब अलग अलग प्रकार के कृत्रिम धागे होते हैं. The silk is the natural thread or the fiber which is obtained from the cocoons of the silkworm, and from one cocoon 500 meters to 1300 meters of the thread can be obtained. And it is said that the silk was first produced in the large scale in the country of the China. तो सिल्क जो होता है, रेशम जो होता है, ये एक प्राकृतिक धागा होता है या फाइबर होता है जो कि हमको रेशम कीड़े के कुकोन्स द्वारा पाए जाते हैं और हर एक कुकोन में से हमको 500 मीटर से लेकर 1300 मीटर्स तक का जो धागा होता है ये हमको पाया जाता है. और ये कहा जाता है कि जो सिल्क है, जो रेशम है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर चाइना देश में निर्माण किया गया था. एंड ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स वेर मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज दैट कैन बी नाउ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक थ्रेड्स. तो सभी जो आर्टिकल्स थे, जो लेख थे पुराने दिनों में, ये सब लेख जो होते थे ये प्राकृतिक फाइबर्स द्वारा बनवाए गए जाते थे, लेकिन आज हम उससे कृत्रिम धागे द्वारा बनवाते हैं. Nylon, rayon and terylene and acrylic are all the synthetic threads and many articles in our daily use are made from them. तो जो नायलॉन और टेरिलिन होता है, रेयन होता है और एक्रिलिक जो होता है, ये सब अलग अलग प्रकार के कृत्रिम धागे होते हैं और जो वस्तुएं होती है हमारे दिन भर दिन जीवन में ये इन धागे द्वारा बनवाई गई जाती है. So our 8th point include our 8th point synthetic fibers or threads include the first one point which name is the nylon. So our 8th point synthetic fibers or threads include the first one point which name is nylon. These threads were invented at the same time in the New York and the London. Therefore, the initials NY of the New York and yellow N of the London were combined to name them nylon. तो ये जो नायलॉन धागे थे ये एक ही वक्त में न्यूयॉर्क और लंदन जैसे देशों में बनवाए गए थे और इसीलिए जो न्यूयॉर्क का NY स्पेलिंग है और लंदन का येलो एन जो है स्टार्टिंग का येलो एन, तो NY येलो एन इन दोनों को जोड़ा कर कौन सा शब्द बनवाया गया था? नायलॉन शब्द बनाया गया था. And nylon threads have a shine and they are strong and they are also transparent and water resistant and they are used to manufacture clothes, fishing nets, ropes etc. तो ये जो नायलॉन धागे होते हैं इनके पास चमक होती है, वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं वो और साफ और स्पष्ट भी होते हैं वो, और वो जल प्रतिरोधी भी होते हैं. और ये जो नायलॉन धागे होते हैं इनका इस्तेमाल हम कपड़े बनाने के लिए, मछलियों के पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो बनाने के लिए और रस्सियाँ बनाने के लिए हम नायलॉन धागों का इस्तेमाल करते हैं. सो आवर फर्स्ट वन पॉइंट नायलॉन इज गेट completed. Now we will see about our second one point which name is the rayon. Cotton and wood pulp is mixed in the chemical called the sodium hydroxide to make the solution, and these threads are obtained from this solution with the help of the machine, and as they have the shine and strength they are named as the synthetic silk. तो जो कॉटन होता है, जो कपास होता है और जो लकड़ी का गुद्दा होता है इसे केमिकल में मिक्स किया जाता है जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उनका सॉल्यूशन बनाने के लिए.
और ये जो रेयॉन धागे होते हैं ये हमको इसी सॉल्यूशन से पाए जाते हैं मशीन की मदद से, और इनके पास एक चमक होती है और वो मजबूत भी होते हैं, तो इसीलिए उन्हें सिंथेटिक सिल्क यानी कृत्रिम रेशम नाम दिया गया है। एंड दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज, हेंस दे आर नेम्ड एज द रेयॉन। तो वो सूरज के किरणों जैसे एकदम ब्राइट चमकते हैं और इसीलिए उन्हें कौन सा नाम दिया गया है, रेयॉन नाम दिया गया है। सो आवर सेकंड वन पॉइंट रेयॉन इज also get completed. Now we will see about our third one point, which name is the dacron, terylene and terene. The hydrocarbon means the substances obtained from the mineral oil. तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो पदार्थ हमको मिनरल ऑयल से पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मिनरल ऑयल कौन से होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो इनसे हमको हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। Various hydrocarbons are obtained from the mineral oil used to make the polymer chain. तो कई सारे जो मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि हमको मिनरल ऑयल से पाए जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम पॉलीमर चेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। And the different types of chemicals are used to make the threads of the various properties, and they are named variously such as the dacron, terylene and terene. तो अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम धागे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अलग अलग गुणों के, और इसीलिए उनका अलग अलग नाम रखा गया है जो कि है डैक्रॉन, टेरिलीन एंड टेरिन। सो आवर द थर्ड वन पॉइंट विच नेम इज डैक्रॉन, टेरिलीन एंड टेरिन इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड। सो आवर 8th one point, that is synthetic fibers or threads, is get completed. Now we will see about our 9th one point, which name is advantages and shortcomings of the synthetic fibers. यानी जो सिंथेटिक फाइबर है, जो कृत्रिम फाइबर है, उसके एडवांटेजेस, उसके फायदे और उसकी कमियां अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट इट्स एडवांटेजेस। सबसे पहले हम उसके फायदे के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन, दिस फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द मास स्केल। तो ये जो फाइबर होते हैं इसे हम मास के स्तर पर निर्माण कर सकते हैं। सेकेंड वन, दे कॉस्ट लेस, उनकी जो कीमत होती है वो कम होती है। थर्ड वन, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, तो वो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं। फोर्थ वन, दे कैन बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, उसे हम बहुत ही ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ वन, दे आर वाटर रेपेलेंट, हैंस दे डू नॉट गेट रॉट और डू नॉट गेट वेट, दे ड्राई इजिली, तो वो जल प्रतिरोधी होते हैं और वो जल्द से जल्द सड़ते नहीं हैं और गीले भी नहीं हो जाते हैं और वो आसानी से सूख जाते हैं। सिक्स्थ वन, दे आर लाइट वेट एंड इजी एंड कंफर्टेबल टू वेयर, तो वो लाइट वेट, उनका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है और हम उनको आसानी से पहन सकते हैं। सेवेंथ वन, एज दे हैव शाइन दे इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द वेयरर, तो उनके पास शाइन होती है, सिंथेटिक फाइबर के पास शाइन होती है, चमक होती है, तो जो भी इसे पहनता है तो वो उसके जो अपीयरेंस होता है, प्रकटन होता है, उसको बढ़ाता है। 8 वन, क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर द व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री, तो जो कपड़े इस फाइबर से बनाए जाते हैं तो ये व्रिंकल फ्री होता है, यानी शिकन फ्री होता है, शिकन मुक्त होता है और स्क्रैच मुक्त होता है। सो वी हैव सीन अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स इज गेट completed. Now we will see about its second one point, which name is the shortcomings. तो अभी हम उसके दूसरे पॉइंट के बारे में देखेंगे जिसका नाम है shortcomings, यानी कमियाँ। They are the water repellent, hence they do not absorb the sweat from the skin. तो वो जल प्रतिरोधी होते हैं, तो जो हमारे त्वचा से जो स्वेट निकलता है, जो मतलब पसीना निकलता है, ये इसको सोख नहीं लेते हैं। सेकेंड वन, द कंटिन्यूस यूज ऑफ द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच मे कॉज द स्किन डिजीज। तो अगर हम कंटिन्यू ये जो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई जो कपड़े होते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करते हैं तो इससे ये जो मतलब कपड़े होते हैं ये हमारे जो त्वचा होता है उसको नम रखता है और जिससे कि हमको त्वचा की बीमारियां हो सकती है। थर्ड वन, सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन द समर। तो समर सीज़न में जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो कृत्रिम कपड़े होते हैं, ये आरामदायक होते हैं हमको पहनने के लिए। फोर्थ वन, दिस क्लोथ्स कैचेस द फायर इजीली, तो ये जो कपड़े होते हैं ये जल्द से जल्द आग को पकड़ लेते हैं। फिफ्थ वन, इफ दे कैचेस फायर इजीली सो द क्लोथ्स स्टिक टू आवर स्किन एंड इट मे कॉजेज द सीरियस इंजरी, तो अगर वो जल्द से जल्द आग पकड़ते हैं तो इससे जो कपड़ा होता है ये हमारे त्वचा को चिपक जाता है और उससे कि हमको त्वचा की जो मतलब त्वचा जो होती है ये हमारे गंभीर जख्म हो जाती है।
सिक्स्थ वन, दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फाइबर होते हैं ये सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं होते हैं। एंड सेकेंड वन पॉइंट, शॉर्टकमिंग्स अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स वी हैव ऑल्सो सीन विच इज गेट completed. So the ninth one point, which name is advantages and shortcomings of the synthetic fibers, is get completed. So now we will see about one question answer which name is, where was the process of the making paper invented? तो जो प्रतिक्रिया है पेपर बनाने की ये किधर इन्वेंटेड की गई थी? So its answer is, the process of the paper making was invented in the Leiyang which is situated in the China. तो जो प्रतिक्रिया थी पेपर बनाने की, पेपर निर्माण करने की, ये किधर निर्माण हुई थी? लेयांग, जो कि चाइना में स्थित है। And we should save trees to save nature and we should save paper to save trees. तो हमको हमारे जो पेड़, हमारे प्रकृति को बचाने के लिए हमको पेड़ को बचाना ज़रूरी है और पेड़ को बचाने के लिए हमको पेपर यानी कागज़ का बचाना ज़रूरी है। And we should use the paper properly and economically and we should make full use of the paper and we should recycle the used paper. तो हमको जो पेपर है उसका पूरी अच्छी तरीके से, पूर्ण तरीके से और आर्थिक तरीके से हमको पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और हमको पूरा का पूरा पेपर इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल किए गए जो पेपर्स होते हैं उसे फिर से हमको रिसाइकल करना चाहिए, यानी कुछ एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए उस पेपर से। And although there are some of the disadvantages in using the synthetic fibers, they are also useful when we used it in the proper way and they reduces the load on the use of the natural resources. तो कुछ disadvantages होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, कुछ कमियां होती है, तो वो हमको कामदायक भी होती है जब भी हम उसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कृत्रिम फाइबर्स जो होते हैं, ये प्राकृतिक जो संसाधन होता है उस पर जो भार होता है उसको कम कर देता है। So the third one part of the chapter which name is substances in daily use is also get completed. So our full chapter is get completed. In this third one part we have learned the first one point which name is synthetic fibers or thread. In it we have seen that from the time it was the first thought that the artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of the increasing population, and much research and the progress has taken place in this field. And the silk is the natural fiber or the thread which is obtained from the cocoons of the silkworms, and from one cocoon 500 meters to 1300 meters of the thread can be obtained, and almost all the articles is made up of the natural fibers in the olden days that can be now made from the synthetic threads. Then in this 8-1 point we have seen about the first one point which name is the nylon. These threads were invented at the one and the same time in the New York and the London, and the initials NY of the New York and yellow N of the London were combined to name them nylon. Then second one point we have seen about the rayon. Cotton and wood pulp is dissolved in the chemical called the sodium hydroxide to make the solution. Threads are obtained from this solution with the help of the machines, and they appear to be shining bright like the sun rays, hence they are named as the rayon. Then third one point we have seen about the dacron, terylene, terine. In it we have seen that the different types of the chemicals are used to make the threads of the various properties. So they are named variously such as the dacron, terylene and terine. And the various hydrocarbons are obtained from the mineral oil which are used to make the polymer chains. Hydrocarbons means the substances obtained from the mineral oil. And currently we have learned about our ninth one point which name is advantages and shortcomings of the synthetic fibers. In it we have seen about the advantages of the synthetic fibers and also the shortcomings of the synthetic fibers. And we should save trees to save nature and we should save paper to save trees. So the third one part of the chapter substances in daily use is fully get completed. So our full chapter substances in daily use is get completed. Jai Hind.